Yes, yes. Uh, so then we have to discuss about village, town, and city. It belongs to the unit 7 of block 2. Uh, Dear friends, you have little bit knowledge relating to village, but most of you reside in towns or cities. But the thing is that why we are interested to study village, town, city in your course, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଏବଂ ଭାରତ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ମଣିଷ କୋଉଠି ରହୁଛି when we think about human settlements we normally came across village town cities etc କିନ୍ତୁ ଆମର human settlement not human living but human settlement प्रत्येक मनुष्य तार निज घरे बसवास करे किंतु जेतेबेले से गोटे सेटलमेंट तैयारी करे जोठी से बसवास करबा पई गोटे एनवायरनमेंट तैयारी करे से एनवायरनमेंट ता होची विभिन्न प्रकार आमे ताको केतबेले विलेज बोली कहूछु केतबेले टाउन बोली कहूछु केतबेले सिटी बोली कहूछु किंतु ए जो विलेज टाउन सिटी भितरे सबुठारो आदिम एवं पुरातन होची विलेज मनीष एमती एक प्राणी जे कि से अन्य मान साहचर्य जीवन धारण करता है से एका एका केबे जीवन धारण कर पारिबनी ताकू जदि आमे जंगल रे छाड़ी दबा ताले से गोटे मनीषर छोट पिलाटा को जदि आमे जंगल रे छाड़ी दबा से किछि दिन पर से मरि जीवो कार सहारा न पाई किंतु मनीषर प्रथम अवस्था रे से अन्यर सहारा खोजे अन्यर साहचर्य खोजे बंचिया पाई एवं धीरे धीरे से तबे बड़ हुए से अन्यर निजर खाद्य पानीय बासगृह एगुड़ाक सब पाइबा खोजे एवं अन्य मानकर साहचर्य नहीं आमे जो भारत को देखा समग्र भारत गोटे ग्रामबहुल राष्ट्र ग्रामबहुल राष्ट्र कहबार उद्देश्य होची आमे सिटी टाउन अपेक्षा आमे मैक्सिमम देखा विलेज एवं बहुत लोक से विलेज रे ही बसवास करते एवं समग्र भारत को देखा गले 69% आमर पॉपुलेशन साधारणतः ग्राम गहल बसवास करते देर आर दि सेटलमेंट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस आमे जो गुड़ा देखुचे अनेक गुड़े सेटलमेंट अच्छी जो लोक मैंने बसवास करती सेगुड़ाक मनीषर बंचापी बसवास करने तार एटमोस्फियर तैयारी करती एवं से एटमोस्फियर हूँ विलेज each and everyone depend upon for economic social and political purpose तेणु प्रत्येक मनीष से ग्रुप रे रहिला बेले तार प्रथम आवश्यकता पड़े इकोनॉमिक लिविंग देन सोशल लिविंग एंड पॉलिटिकल लिविंग तेणु से से अन्यर साहचर्य निये अन्यर अन्य को खोजे तेणु आमे जो सेटलमेंट कथा कहले ये जो सेटलमेंट रे प्रथमे आसुची कौन ना ह्यूमन सेटलमेंट रे आमे जदि बहुत अतीत को जीवा देखिबा भारत साधारणतः जिते जो मैंने सोशियोलोजिस्ट माने इंडोलॉजिस्ट माने जिते भारत को आसी स्टडी करने को आरंभ कर देखी भारत माने विलेज सराउंडिंग रे सृष्टि कहते इंडिया लिव्स इन ऑन विलेजेस according to 2011 census the country has 6,40,887 rural villages जेतबे हमर 2011 सेंसस हला एवं एनुमरेशन समय रे देखा जायछि जे भारत रे 6,40,887 रूरल विलेज रही गाँ रही जोठी कि
less than 1000 residents having 69% of people in the villages. সেই ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ 1000 ପପୁଲେସନ୍ ଠାରୁ କମ୍ ଥାଇକରି ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭିତରେ 69% ଲୋକମାନେ ଭିଲେଜରେ ହିଁ ବସବାସ କରନ୍ତି। এই ভিলেজ ଷ୍ଟଡି ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭିଲେଜ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ମଧ୍ୟ ଭିଲେଜ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି ଭାରତରେ। ସେମାନେ ଭାରତରେ ଗାଁ ଗହଳର ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳନ, ତାର ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ବିହେଭିଅର, ଲୋକମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ପର୍କ, ଏଗୁଡିକ ଦେଖି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଭାରତରେ ଏଇ ଭିଲେଜ ଗୁଡାକ କେମିତି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ତାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ସବୁ କ'ଣ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ରାଇଟର ମାନେ, ଫରେନ୍ ରାଇଟର ମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ବୁଲି ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଭିଲେଜକୁ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ହେନରୀ ମାଇନ୍, ବୋଡେନ ପାୱେଲ, ଚାର୍ଲସ ମେଟକ୍ଲେଫ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ। ଏମାନେ ହେନରୀ ମାଇନ୍, ବୋଡେନ ପାୱେଲ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, social writers, thinkers. ଚାର୍ଲସ ମେଟକ୍ଲେଫ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର। ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିଟିଲ ରିପବ୍ଲିକ। ଆମେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆକୁ କହୁଛେ ଗୋଟେ ରିପବ୍ଲିକ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସେମିତି ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟର ଭିଲେଜ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିପବ୍ଲିକ ଭଳି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଭଳି। ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଲାଇଫ, ଇକୋନୋମିକ ଲାଇଫ, ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ ସବୁଯାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଆମେ ଆସେସ୍ କରିବା, ସେ ଗୋଟେ ଦେଶ ବଢ଼ିଆ ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ସେଇକୁ ନେଇକରି ଆମର ଭିଲେଜ ଲାଇଫଟା ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇଟର ମାନେ, ବ୍ରିଟିଶ ରାଇଟର ମାନେ, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଭିଲେଜ ଗୁଡାକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲିଟିଲ ରିପବ୍ଲିକ। ଇଟ୍ ଇଜ କ୍ଲୋଜ୍ଡ, having isolated system of self sufficient entity। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିଲେଜକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଲେଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିପବ୍ଲିକ। ତାଙ୍କର ନିଜେ ସେମାନେ ନିୟମ କାନୁନ ତିଆରି କରନ୍ତି, ନିଜେ ଗଭର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଥାଏ, ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଲେଜକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭିଲେଜକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ এইটা তো গোটে জিনিস হল লিটল রিপব্লিক। সেকেন্ড জিনিস ସେମାନେ ତାକୁ ଏମ୍ଫାସିସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକରି, କହିଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲୋଜ୍ ସୋସାଇଟି। ତା ଅର୍ଥ ମାନେ ଏମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ନିଜେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନି, କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କର ପଡ଼େନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି, ନିଜର ପୋଷାକ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେମାନେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ସୋସାଇଟି having isolated system। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍, ତାର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ରହିଛି, ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ଭିଲେଜ। ସେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କର ରହିଲା, ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ସେ ଗାଁର ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁର ମେମ୍ବର। ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯାଏ। ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ପୁଣି ସରପଞ୍ଚ ହୁଏ। এইଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାୟରାର୍କିକାଲ ଅର୍ଡର ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ସବୁ ସେମାନେ ଫ୍ରେମ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଲେଖା ହେଇନଥାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରିଡିସେସର୍ସ ମାନେ ଅତୀତରେ କୌଣସି ଇନସିଡେଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି ସେଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟକୁ ସାଇଟ୍ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଗାଁର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ এটা হচ্ছে পলিটিকাল আইসোলেসন। সিমিলারলি ইকোনমিক ক্ষেত্রে আমি দেখিলে যে ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମିରେ ଯାହା ରୋଜଗାର ମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେଲ୍ କରନ୍ତି। ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼େ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ସେମାନେ ଧାର ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ଭେରି a new type of system. That system prevails and identifies a village life.
एमान भितर आउ गोटे कैरेक्टरिस्टिक को से माने दर्शाइछन्ती सेटा हला सेल्फ सफिशिएंटनेस। प्रत्येक विलेज होची निज निज जेमति आमे निज गोड़े छिड़ा है पारिबला भलिया एक संस्था जोठी कि से माने कौन लोकों उपरे आवश्यकता से माने बेसी खोजती ना तांकर खाद्य तांकर बासगृह तांकर वेश पोशाक तांकर कल्चर सबुड़ाक होते तांकर निजस्व से माने ताकू निजे तैयारी करती निजे ताकू व्यवहार करती एवं अन्य मानक भितरे ताकू शेयर करती। तेणु एमाने ये जो जिनस गुड़ाक मुझे कहली ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स विलेज रे देखा जाए से विलेज से माने तांको लाइट रे तांको चिंताधारा रे एगुड़ाक एनालिसिस करछन। किंतु जेतेबेले भारतर सोशियोलॉजिस्ट माने थिंकर्स माने भारतीय सोशियोलॉजिस्ट माने जेतेबेले भारत को स्टडी करने को आरंभ कले भारतर विलेज को जाइकरी से माने स्टडी कले लोक मान चालीचलन व्यवहार एवं प्रत्येक गाँ गुड़ाक केमी तैयारी केमी एक्जिस्ट करुच्ची केमी माने तार से गति करुच्ची एगुड़ा जो स्टडी कले से देखिले जे ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट माने जो भली गोटे भारतर विलेज को डेजिनेट करिसेंती किंतु सेटा संपूर्ण भाव में भिन्न। आमे जहाँ को कहूचे क्लोज सोसाइटी माने जो ब्रिटिशर्स माने ताको कहते इट इज ए क्लोज सोसाइटी से कहले कौन सी भारतर विलेज क्लोज सोसाइटी नुहे से माने गोटे बहुत बड़ ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन सब बेले परस्पर सहित इंटरेक्ट करके से माने निज को मेंटेन करती गोटे विलेज आउ गोटे विलेज सहित तार रिलेशन थाए सी हुई तो माने मैरेज को लेकरी फैमिली को लेकरी पॉलिटिकल सिस्टम को लेकरी कि इकोनॉमिक सिस्टम को लेकरी प्रत्येक विलेज आउ गोटे विलेज सहित तार संपर्कित सेमती अनेक गुड़े विलेज सी निकटवर्ती सहर सहित संपर्कित। तेणु आमे कहीपर प्रत्येक विलेज हूँ गोटे आइसोलेटेड एंटिटी और क्लोज सोसाइटी। तेणु से माने भारतर को जिते स्टडी करछंती प्रत्येक प्रांतर को स्टडी करछंती सेतबेले से माने एई प्रकार नोशन माने चिंताधारा से माने दर्शाइछंती। से माने को कहवा कथा होची इंडियन स्टडीज रिवील्स दैट the villages are not closed society rather a wider society referral to urban communities। एगुड़ा कहूँ गोटे वाइडर सोसाइटी इट इज नॉट ए क्लोज सोसाइटी जो क्लोज सोसाइटी क्या कहते ना से माने क्या डिपेंड करेंगे मनकर मोर गोटे घर अच्छी मु घर भितर मोर सब जाक जिन करुच्ची मोर पाख पड़िशा किए मुझे जानी से दैट इज नॉट द केस। किंतु विलेज कैरेक्टरिस्टिक्स हूँ सी निजे सेल्फ सफिशिएंट होगा सहित सी अन्य मानक को दूरी दिएनी अन्य मानक सहित मिसिकी सी ही सेल्फ सफिशिएंट हुए यही जो जिनटा को भारतर सोशियोलॉजिस्ट माने दर्शाई। तेणु से कहवा कथा द पीपुल मूव टू टाउन्स सिटीज फॉर वेरियस पर्पसेस एंड एक्जिस्टेंस ऑफ इंटर विलेज एंड रूरल अर्बन इंटरेक्शंस। तेणु मु जो कथा कहली प्रत्येक विलेज अन्य विलेज सहित तार इंटरेक्शन करे सी निज निज भितर इंटरेक्शन करने सहित अन्य विलेज सहित इंटरेक्शन करे प्रत्येक विलेज तार अर्बन एरिया सहित तार इंटरेक्शन थाए से जो इंटरेक्शनटा कौन ना से माने मूव करती गोटे विलेज रू आउट एरिया को मूव करती और द पर्पस ऑफ ऑक्युपेशन कहना साधारणतः ऑक्युपेशनल डिफरेंशिएशन सहर मानक देखा जाए। तेणु एठू बहुत लोक काम धंदा करने सहर को जाती तांकर जो उत्पादित जिनस अच्छी से माने बिकिया सहर को जाती एवं जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अच्छी सहर रे कि देश रे से माने गाँव को आसती माने पॉलिटिकल पार्टी तैयारी करी मोबिलाइज करने तेणु जहाँफल कि प्रत्येक विलेज विलेज सहित विलेज टाउन सहित भीतर गोटे इंटरेक्शन प्रोसेस थाए एवं यही जिनटा को भारतर सोशियोलॉजिस्ट माने अति सुंदर भाव बही मानक लिखिं कौ एरिया रे कौ टाइप इंटरेक्शन प्रोसेस रही से दर्शाई। बिसाइड्स दिस दे हैव इंट्रा विलेज टाइज। इंटर विलेज माने गोटे विलेज सहित आउ गोटे विलेज इंट्रा विलेज मीन्स निज विलेज भितर निज विलेज भितर कौन
ना गोटे भिलेज रे अनेक गुड़े साई थाए, अनेक गुड़े कास्ट पीपुल थांती, अनेक गुड़े ऑक्युपेशन रो लोक माने भी थांती, किए चाषबास करुच्ची तो किए कुंभार काम करुच्ची, किए बढ़ई काम करुच्ची, किए पूजा पार्वण करुच्ची, यही सब जिन गुड़ाक से प्रत्येक भिलेज रे सब इंडिपेंडेंट रही थाए। तेणु से गाँव में लोक मैंने निज निजर अभाव असुविधा गुजराण मेटाइवाई से परस्पर भितर संपर्क रखी था। इन द fields of family caste they have intra village ties, in the fields of family caste class social economic political and cultural domains। तेणु से केवल भितर इकोनॉमी से डिपेंड करती नुहे, पॉलिटिकल पॉलिटिकली से परस्पर भितर डिपेंडेबल, कल्चरली ऑल्सो दे आर डिपेंडेबल। जदि गाँव में किसी महोत्सव है, कल्चरल फेस्टिवल है, ताले पाखपाखी गाँव से गाँव को सब लोक आसती देखापी, एवं से माने जो मार्केट सिटी बसे ताकू से किणिकी नियंती, एवं जिते न्याय निशाप हुए से गाँव किसी कौन से प्रोब्लेम है ताकू जो समाधान करती अन्य गाँव लोक मानक डक जाए। गाँ गाँ भितर किसी प्रोब्लेम हेले दुई गाँ मिसिकी से प्रोब्लेम टाक सल्व करती। तेणु ये कौन हुए ना प्रत्येक विलेज जो ब्रिटिशर्स माने कहले आइसोलेटेड विलेज क्लोज विलेज से जिनटा को देखी भारतर गाँ गुड़ाक से नुहति से सब गोटे गोटे माने कोर स्ट्राटम भीतर अच्छा जो कोर एरिया जोटा कि समग्र भारत को चिन्ह दिए। इट इज centralized by reciprocity, cooperation, dominance and competition। तेणु आम जो विलेज को कहे माने समस्ते पूरा सेल्फ सफिशिएंट आइसोलेटेड, एक्चुअली कौन सी भारतर विलेज आइसोलेटेड और सेल्फ माने प्योरली सेल्फ सफिशिएंट नुहे, से माने परस्पर भितर दबा नबा करते जोटा कि रेसिप्रोसिटी मेंटेन हुए, परस्पर को साहाय्य करते जोटा कि आम कहू कोऑपरेशन। प्रत्येक विलेज भितर डोमिनेंसी रही, कॉम्पिटिटिवनेस रही। तेणु गोटे विलेज जदि भल किसी कला अन्य विलेज ता द्वारा मोबिलाइज होती से भल जिन करने को चेष्टा करती। तेणु से परस्पर भितर टेक्निक्स एटा को शेयर करती एवं परस्पर को साहाय्य करते। तेणु एटी आम दुईटा जिन देखुचे जे विलेजेस गुड़ाक भारतर विलेज गोटे ग्रुप लोकों दृष्टि गोटे प्रकार, आउ गोटे ग्रुप लोकों दृष्टि आउ गोटे प्रकार। तेणु जिते बड़े आम भारतर विलेज को स्टडी करुचे तार सबूक पॉइंट रे आम जदि एनालिसिस करवा ताहले आम जापर भारतर विलेज मूलपिंडटा कौन, एत लोक कहीं प्रेफर करती विलेज रे रही एवं विलेज एपर्यंत केमती से एक्जिस्ट करी। तेणु आम ये कहीपर the villages existed during Vedic age, Indus Valley civilization, along with urban centers and share common facets of life। आम जो विलेज को आज देखुचे भारत में एवं सबुठ अधिक संख्यार लोक मैंने गाँ गहल बसवास करती, तार उत्पत्ति वेदिक एज रे आरंभ होइछि। से समय आम देखुचे विलेज लाइफ थिला, इंडस वैली समय विलेज लाइफ थिला, किंतु से समय विलेज गुड़ाक आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट हो नथिला। से माने पाखरे थिबा सहर सबर ए एरिया सहित लोक मान सहित इंटरेक्शन आसुथिले। से माने जहाँ अमल करुथिले जहाँ प्रोडक्शन करुथिले ताकू नहीं से बिकुथिले। सहर थिबा जिनिस गुड़ाक से गुजराण मेंटाइवाई धरिकी आसुथिले। तेणु जहाँफल कि भितर संपर्क एस्टाब्लीश होता, इवन वैवाहिक संपर्क ठू आरंभ कर पारिवारिक संपर्क एस्टाब्लीश करते। तेणु आम देखुचे जे प्रत्येक विलेज भारतर हूँ गोटे मूलपिंड। आम जदि सब विलेज को स्टडी करवा देखा जे सबू विलेज भारतर एका प्रकार नुहे, केते गुडे विलेज रही स्कैटर्ड विलेज सब अलग अलग है रही। जदि किसी लोक गोटे जगह बसवास कर 50-60 लोक से गोटे कंग्रिगेशन कर गोटे विलेज तैयारी करछंती,
आउ गोटे एरिया रे आउ गोटे प्रकार विलेज ହେଇଛି तमे जदि देखिबो ट्राइबल एरिया रो विलेज सेटा सब होची स्कैटर्ड विलेज ये पहाड़ भितर से जंगल भितर छोटिया छोटिया हामलेट सब थाए छोटिया छोटिया विलेज सब थाए एवं सेठी 20-25 ठू आरंभ करी 100 पर्यंत लोक बसवास करती एवं केवल से नुहे आम विलेज स्ट्रक्चरालाइजेशन देखू भिन्न केतेक विलेज घर गुड़ाक पूरा लाइन लाइन रास्तार दुई साइड रे लाइन हो रही आउ केतेक विलेज रे किछि कोनसी लाइन नथिबो माने माने छोटिया छोटिया गली रही घर को जीवाई ए गली से गली को देखिए से माने घर को जाउथिबे कोठी माने सिस्टमेटिक प्लानिंग ये विलेज नथिबो ए टाइप रो विलेज हम देखुछु केतेक विलेज अछि पूरा टोटाली नड़ा छपर खपर किंबा ए टाइप रो विलेज रे मथ हम देखिछि लोकल जहाँ प्रोडक्शन हुए से घर तैयारी करते घाटी माटी रे घर ठू आरंभ करी पत्थर रे घर घर स्ट्रक्चर मतलब भिन्न प्रकार थाए तेणु लोक माने बेसिक नीड मोर कहया कथा होची जे लोक माने नीड को लेकर एनवायरनमेंट को लेकर से माने घर तैयारी रो सरंजाम आनती एवं आवश्यकता को लेकर से माने विलेज को तैयारी करती आमे जति पूरी साइड को जीवा जो ब्राह्मीण विलेजेस सब रही सेठी देखिबा तांकर विलेज रो स्ट्रक्चरालाइजेशन होची भिन्न माने प्रत्येक गाँव रे गोटे बहुत लंबा ओसारिया रास्ता थिबो रास्तार दी साइड रे घर थिबो घर गुड़ाकर माने पिंढा गुड़ाक बहुत उच्चा थिबो एवं गाँव रो शेष रे थिबो दोलबेदी ठाकुराणी मंदिर तेणु ये गोटे स्ट्रक्चरालाइजेशन सेठी ता भितर देखिबो ना ताकर घर स्ट्रक्चर मत भिन्न प्रत्येक घर चाल अन्य गोटे घर चाल सहित लगी से इंडिपेंडेंटली एगुड़ाक हूँ माने ट्रेडिशनल विलेज स्ट्रक्चर आम जदि देखा बर्तमान जो मॉडर्न समय रे जो वेलफेयर स्टेट रे जो विलेज सब तैयारी माने अच्छी बर्तमान सुधा आम से मिक्सड हाउसिंग पैटर्न देखा सेठी धनी अच्छा गरीब अच्छा पूरा मध्यवित्त अच्छा तेणु से घर तैयारी कर प्रणाली टाइप्स सरंजाम भिन्न आम देखुचे केते लोकंकर चाल घर थिला बेले केते लोकंकर झाटी माटी घर अच्छी केतेक छात घर अच्छी तेणु यही घर प्रकार भेद माने प्रत्येक विलेज रे भिन्न तेणु आम ये कहीपर जे विलेज गुड़ाक यूनिफॉर्मली तैयारी होती यूनिफॉर्मली तार स्ट्रक्चरालाइजेशन होती तेणु प्रत्येक भारतर विलेज गुड़ाक तार नीड बेस्ड विलेज बोली कह जाए आवश्यकता नहीं विलेज टाइम विलेज को लेकर आम देखा जे व्हाट इज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए विलेज आम जो विलेज को बर्तमान रिप्रेजेंट कले जे विलेज टाइप्स तार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सेटा क्या सहित लिंक ना प्रत्येक विलेज तार गोटे स्वतंत्र सोशल स्ट्रक्चर रही व्हाट इज दैट सोशल स्ट्रक्चर माने सोसाइटी हैज इट्स ओन स्ट्रक्चर जदि आम गोटे विलेज रे बुलिबा ताले विलेज रे जो घर गुड़िक सब थी सी प्रथम गोटे गोटे साही रे विभक्तिकरण हो गाँ मझे रास्ता थी गाँव मझे होपे कि गाँव शेष हो पारे जो गले देव मंदिर थी जो लोक मैंने आसवे जानी जात्रा करुवे एक्चुअली कंग्रिगेशन होती पंचायत हो न्याय निशाब करा तेणु से गोटे स्थान रही गाँव मझे रही उच्च वर्णर लोक मैंने हाई कास्ट पीपुल गाँव पेरीफेरी लगिक परवर्ती कास्ट क्षेत्रीय कि वैश्य लोक थे गाँव शेष थे शूद्र कि गाँव आरंभ थे शूद्र श्रेणी लोक एवं पाखे जो पोखरी थी गाड़िया थी सेटा गोटे स्वतंत्र भाव में गाँव चारिपट जाक थी चाष जमी तोटा ये सब तेणु आम जो गोटे विलेज को दूर देखा केमी चिन्हमा यहाँ गोटे विलेज बोली तार यही जो स्ट्रक्चरालाइजेशन कथा कहली तार गोटे स्वतंत्र स्ट्रक्चर अच्छी प्रत्येक विलेज रे को जगार ब्राह्मण माने रे क्षत्रिय माने रे वैश्य माने रे
तांको साहिर स्ट्रक्चर केमती हम जो मैंने अच्छा कोबलर्स माने कार्पेंटर माने ब्लैक स्मिथ माने से सब कौट रे पूरा गोटे स्ट्रक्चर भितर से देखा जाए यह आम कहूँ सोशल स्ट्रक्चर दि स्ट्रक्चर मेंटेन बाय द विलेजर्स से जो सोशल स्ट्रक्चर भितर गोटे मेन इनग्रेडिएंट थाए दैट इज फैमिली ये जो विलेज जो कन्स्टिट्यूट होती से खाली लोक मान को लेकिन कन्स्टिट्यूट होनी कि प्रत्येक लोक से गोटे परिवार रे बसवास करे एवं अनेक गुड़े परिवार को लेकिन गोटे विलेज तैयारी तेणु फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ विलेज लाइफ आम से कहवा प्रत्येक परिवार हूँ गोटे विलेज रोटे बेसिक यूनिट दि स्मॉलेस्ट यूनिट आम कहवा स्मॉलेस्ट यूनिट तेणु फैमिलीटा तार हूँ तार माने मेन इनग्रेडिएंट गोटे विलेज रोटे मेन इनग्रेडिएंट कहले हूँ फैमिली एवं प्रत्येक फैमिली से केमिति कन्स्टिट्यूट होती बाय मीन्स ऑफ और बाय प्रिंसिपल ऑफ मैरिज मैरिज पर दुई जन मिसिकी हजबैंड वाइफ से मिसिकी गोटे परिवार तैयारी करती एवं से परिवार अनेक गुड़े परिवार मिसिकी गोटे विलेज कन्स्टिट्यूट हुए तेणु बेसिकाली आम देखू गाँ मानक फैमिली गुड़ाक दुई प्रकार देखा जाए ताठू अनेक गुड़े टाइप रही किंतु बेसिकाली दुई प्रकार थाए गोटे न्यूक्लियर फैमिली अनदर जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली कौटी कह जाए ना जो माने हजबैंड वाइफ एवं अनमैरिड पिला माने रही था गोटे घर करके रही था कहते न्यूक्लियर फैमिली एवं से फैमिली रे हजबैंड वाइफ एंड तार अनमैरिड चिल्ड्रेन से पुओ हो कि झी हो अनमैरिड चिल्ड्रेन से पाखे थे से मैरिज करते मैरिज कलापर तो से आउ गोटे घर कले तेणु से न्यूक्लियर फैमिली मेंटेन करते बहुत गुड़े न्यूक्लियर फैमिली थाए गोटे विलेज रे आउ थाए कौन जॉइंट फैमिली थाए एमती केतुटे न्यूक्लियर फैमिली जो एकाठी बसवास करती सेटा हूँ जॉइंट फैमिली हुए एवं साधारणतः कह जाए जे मैक्सिमम विलेज रे भारतर बहुत गुड़े विलेज रे यही जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चरटा ही देखा जाए एवं जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर देखा जीवार मेन कारण हूँ कौन ना इट इज बिकज ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आमर प्रत्येक विलेज गुड़ाक कृषि उपर निर्भर करती इकोनॉमिक एक्टिविटीज मोस्टली द विलेजर्स डिपेंड ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एग्रीकल्चर गोटे गोटे ऑक्युपेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो थे बहुत लोक दरकार हुए तेणु मैन पावर अधिका दरकार हुए मैन पावर अधिका दरकार होवाई जो चाष वर्ष कार्य को त्वरान्वित करने साधारणतः परिवार उपर निर्भर करे एवं परिवार रे जदि अधिक लोक थे से चाषबास कर ठीक भाव मेंटेन करेंगे तेणु बहुत हुए यही कारण भारतर अनेक गुड़े विलेज रे जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर फैमिली पर नेक्स्ट आसला विलेज विलेज जो कथा मु कहली आमर विलेज रो स्ट्रक्चराइजेशन से प्रकार मैरिज को कैरेक्टर मैरिज गोटे को लेकिन विलेज रो स्ट्रक्चराइजेशन और सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन आम देखु कौन केते विलेज रही से एक्सोगामी कह जाए विलेज एक्सोगामी माने विलेज रे कौन मैरिज फंक्शन हुए ना माने से विलेज रो लोक माने से विलेज रे ही मैरिज करती ना तेणु या कहती विलेज एक्सोगामी गोटे विलेज रो पुओ सी आउ गोटे विलेज रो झील को मैरिज करे तेणु या द्वारा कौन हुए ना गोटे विलेज रो समस्ते भाई भौणी बोली से निजक डेजिग्नेट करती गोटे लोक से तार पड़ोसी घर लोक को तार बाप सम्मान दिए भाई सम्मान दिए भौणी सम्मान दिए तेणु से विलेज रे गोटे फैमिली संपर्क एस्टाब्लिश हुए गोटे विलेज रे अनेक गुड़े फैमिली थे किंतु से जो फैमिली भितर जो संपर्कटा हुए सी गोटे हूँ बहुत बिगर फैमिली तेणु ये जो बिगर फैमिली स्ट्रक्चरटा सृष्टि हुए से कोऑपरेशन सृष्टि हुए समस्ते समस्त को साहाय्य करती सम्मान दियंती कोऑपरेट करती तेणु विलेज इंडियन विलेज रो गोटे इंपोर्टेंट मूलपिंड और कैरेक्टरिस्टिक्स है विलेज इज एक्सोगामस अनदर वन इज
villages are गोत्र exogamy ସେମାନେ maintain କରନ୍ତି। ତେଣୁ village most of the villages are exogamous villages and the people designate themselves as kith and kings। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଭିଲେଜର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ହେଉଛି এটা হচ্ছে ভিলেজর সোশিয়াল স্ট্রকচর। আমি আপরে যা ভিলেজর পাওয়ার স্ট্রকচর। ভিলেজর পাওয়ার স্ট্রকচর কহিলে আমি বুঝু যে পঞ্চায়েত। বর্তমান এই পঞ্চায়েতর রোলটা হচ্ছে সবুঠারু বেশি। এটা এবে তৈরি হয়নি। আমার যে পলিটিকাল অর্গানাইজেশন রে পঞ্চায়েত কু এমফাসিস দিয়া যায়। सरपंच पंचायत हेड कहती एवं प्रत्येक विलेज रे गोटे गोटे पॉलिटिकल यूनिट थाए एवं से पॉलिटिकल यूनिट रो जे हेड थांती से विलेजर हेडमैन कह जाए एवं प्रत्येक गाँव रो माने फैमिली रो जो माने सब मुरब्बी श्रेणी लोक थांती से माने हेले से पंचायत रो जन जन मेंबर एवं सेमाने नियम कानून तैयारी करती एवं ताकू मध्य इम्प्लीमेंट करती। जदि दरकार पड़े मध्य ताकू सेमाने दोषी को बाहर करती, दोषी को पनिशमेंट दियंती। तेणु यही जो प्रकार जो सिस्टम ये सिस्टम बहुत दिन रू माने विलेज को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करिया पई ताकू मेंटेन करिया पई साधारणतः यही पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर तैयारी एवं यही पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर रे साधारणतः जो लोक मैंने नियम कानून को तैयारी करती एवं ताको पालन करने विलेजर्स मान को कहती से गोटे स्वतंत्र सम्मान थाए एवं से ट्रेडिशनली से पावर को इनहेरिट करती एवं ताको हैंडओवर करती परवर्ती जेनेरेशन को। तेणु आम से देखू जे प्रत्येक विलेज रे जो पंचायत रही थाए सेटा होची गोटे ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर गोटे एलिमेंट। तेणु विलेज को ऑर्गेनाइज करने यही पंचायत रोल हूँ सब इम्पोर्टेंट। ऑर्गेनाइज माने कौन ना ताको मेंटेन करवा तार लोक मान को ठीक भाव व्यवहार करवा बिहेवियर करने प्रवर्तन एवं कौन सी दोषी को केमती से दोष न करने से तागिद करवा एगुड़ाक सब पंचायत साधारण काम होता है। आम दीटा जिनस देखिले गोटे हूँ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ विलेज अनदर हूँ विलेज पावर स्ट्रक्चर। आम ता परवर्ती स्टेज को जीवा जो विलेज इन प्री ब्रिटिश इंडिया आम विलेजर एक्जिस्टेंस विभिन्न स्टेज को लेकर एनालिसिस करने तार एक्जिस्टेंस विभिन्न स्टेज रे माने कौन ना प्री ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिशर्स न आसी आमर भारत में से शासन आरंभ हो ना पूर्व विलेजर एक्जिस्टेंस रही जोटा कि कहली वैदिक एज रे इंडस वैली सिविलाइजेशन रे तार एक्जिस्टेंस देखा मिली एवं से विलेज गुड़ाक गोटे तार ट्रेडिशन द्वारा कल्चर द्वारा मेंटेन होता। जो ब्रिटिशर्स माने आसिले ता पूर्व राजा राजा माने शासन करते गोटे राज्यर राजा अंडर रे अनेक गुड़े विलेज रही एवं विलेज गुड़ाक मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज रही से माने जहाँ चाषबास करते कि अन्य काम करते कर आकार रे खजना आकार रे राजा को दौले। राजा माने से पैसा रे विलेज उन्नति करने से चेष्टा करते कौ गाँव में कौन पोखरी हम कौ गाँव में गछ लगा हम कौटी रास्ता तैयारी हम एवं लोक मैंने केमती भलरे रहिबे से रोग बैराग कि जानी यात्रा सबुड़ाक केमती ठीक भाव हम एगुड़ाक राजा बुझीबार दायित्व थिला। जेमती विलेजर्स माने खजना दौले जहाँ चाष करते राजा को दौले सेमती राजा माने भल मंद कथा बुझुते। जिते ब्रिटिशर्स माने आसिले से माने विलेज स्ट्रक्चरालाइजेशन को प्रथम स्टडी करने को आरंभ कले। से देखिए जदि गाँ गहलर लोक मान आम जदि ठीक भाव न बुझा जदि एकत्रित न करवा आम प्रॉपर वे शासन करें कहीं आमर जो सहर सभ्यता
ସେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ସହର ସଭ୍ୟତାର କୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଭିଲେଜର୍ସ ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସହର ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସେଇ ସହର ମାନଙ୍କର ତିଆରି କରିବା ଫଳରେ ସେଠି ତାଙ୍କ ଦେଶର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ କଲଚରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ତାକୁ ଭାରତ ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବଢ଼େଇବା, ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବଢ଼େଇବା, ଆଉ ଏଜୁକେସନ କୁ ପ୍ୟାଟ୍ରୋନାଇଜ ଦେବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭିଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ତାରି ପେରିଫେରୀରେ ରହୁଥିଲା, ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାଉନ କିମ୍ବା ସହରର ପେରିଫେରୀରେ ରହୁଥିଲା, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଭିଲେଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଏଠିକି ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯୋଉ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସହର ମାନଙ୍କରେ ସେ ଭିଲେଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ସମୟର ଭିଲେଜ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିଲେଜ ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ ଆସିଲା। ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ରାଜାଙ୍କ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିକରି ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସହର ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଲେଜକୁ ସାମିଲ କଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆର ସମୟରେ ଯୋଉ ଭିଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟଡି କରାଗଲା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୋବିଲାଇଜ କରିହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଶାସନଟାକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ, ସେମାନେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଶିଖିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଯୋଉ ନେତାମାନେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ ଶାସକ ମାନେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭାରତକୁ ଯଦି ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେବ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଲେ ଭିଲେଜ ଲାଇଫ ଉପରେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର କଲଚର, ତାଙ୍କର ମାନେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲସ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାଟ୍ରୋନାଇଜ କରାଗଲା ଏବଂ କେମିତି କୃଷି ମାନେ ସେମାନେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱେରେ କୃଷି କରୁଥିଲେ, କୃଷିକୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇକି ତାକୁ ଆହୁରି ଅମଳକ୍ଷମ କରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ କରାଗଲା ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ୱେଲଫେୟାର ମେଜର୍ସ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ସେଇ ଗାଁରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଫଗାର୍ଡ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଲିସି ଫର୍ମେସନ ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ହେଲ୍ଥ ପଲିସି, ଏଜୁକେସନ ପଲିସି, ଇକୋନୋମିକ ପଲିସି, ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ କାନୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା ଭିଲେଜେସ୍ ମାନଙ୍କର ସମୂହ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ସହର ସଭ୍ୟତାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହବ। ଏଇଟା ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଉପରେ ଆମର କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇଣ୍ଡିଆ, particularly independence ପରେ ତାର ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଭିଲେଜ ସଭ୍ୟତା ରହିଛି, ଭିଲେଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ରହିଛି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ ଦ୍ୱାରା ଗତି କରିଛି। ସେ ଷ୍ଟେଜ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟେଜ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଜ, ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ୱାନ୍ ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟେଜ, ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଫେସ୍ ଦେଇକରି ଆମର ଭିଲେଜ ସଭ୍ୟତା ଆଉ ଭିଲେଜ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗତି କରିଛି, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱ ୱେରେ ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ମାନେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିଲେ ଏଠି ଅଛି ଭିଲେଜର ସଭ୍ୟତା ଉପରେ, ଭିଲେଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ। ଆମେ ତାପରେ ଆସିବା ଟାଉନ ଆଉ ସିଟିଜକୁ। ମାନେ ଆମେ ଯଦି କେବଳ ଭିଲେଜକୁ ଦେଖିବା, ତାକୁ ଆଇସୋଲେଟ କରି ଦେଖିପାରିବାନି, ତାକୁ ମାନେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ସହିତ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟିର ସଭ୍ୟତା ସହିତ। ଏବଂ ଟାଉନ ଆଉ ସିଟିଜର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ କେମିତି ଆସିଲା ନା ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାଟର୍ନସ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ଜିନିଷଟା ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ସମୟରେ, ସେମାନେ
अर्बन सेंटर सब तैयारी कले एवं जो अर्बन सेंटर गुड़ाक तैयारी है तांकर सुविधा पाई तांकर व्यवसाय वाणिज्य करने पाई तांकर शासन करने पाई एवं सेमानकर लिविंग पाई साधारणतः अर्बन सेंटर सब से कले एवं से अर्बन सेंटर गुड़ाक सब प्रकार एमिनिटीज रखा आरंभ कले रास्ता घाटर उन्नति है इकोनॉमिक इंडस्ट्री एस्टाब्लिश है तापरे से माने हेल्थ इकोनॉमी ये सेक्टर गुड़ा को से बहुत एम्फासिस देले प्रमोट कले डेभलप करने को चेष्टा कले तेणु ये जो अर्बानाइजेशन डेभलपमेंट फल ड्यू टू रैपिड अर्बानाइजेशन प्रोसेस villages and towns are mingling to each other तेणु जोटा आगुरी विलेज तार गोटे स्वतंत्र आइडेंटिटी नहीं करी एक्जिस्ट करूला जो अर्बानाइजेशन प्रोसेसटा स्टार्ट है एवं रैपिड अर्बानाइजेशन देखादेला से प्रत्येक विलेज गुड़ाक टाउन सहित मिसवा आरंभ कले जे आम गोटे विलेज से टाउन पेरिफेरी भितर से रहीगला तार एक्जिस्टेंस रही तार ना रहा विलेज किंतु तार एक्टिविटी सब सहर बढ़ी एमती अनेक गुटे विलेज को आम बर्तमान कन्वर्ट होने गोटे छोट छोट अर्बन सेंटर रे परिणत हो गले तेणु अर्बन केवल जो अर्बन सेंटर है ना भितर छोट छोट सबर्ब्स स्लम्स जो थे कि लोक मैंने परस्पर भितर से इंटरेक्ट कर डिपेंड कर जीवन धारण प्रणाली को एक्सचेंज कर तेणु जो विलेज रे लोक मैंने केवल कृषि कार्य करुले धीरे धीरे जो अर्बन सेंटर डेभलप कला से भितर माइग्रेशन बढ़ला गोटे विलेज रु से सहर को आसिले विभिन्न पर्पस रे किए काम करने को आसला किए शिक्षा पाइबा आसला किए हेल्थ फैसिलिटी पाइबा को आसला तेणु जहाँफल कि से भितर माइग्रेशन बहुत बढ़ला तेणु ट्रेड कॉमर्स माइग्रेशन दीज आर दिस न्यू concept emerged when the villagers interact with the urban centers तेणु आम जो एनालिसिस करवा देखा जे टाउन ताले क्या आम टाउन बोली कहबा तार डिफाइन करने को हेले एनी एरिया और सेटलमेंट as urban was its administrative setup and size and not the economic character आम गोटे एरिया को अर्बन एरिया कहबार मेन कारण हूँ यहाँ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप मीन्स इट हैज ए पर्टिकुलर बाउंड्री दैट बाउंड्री इंडिकेट्स ए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड इट हैज इट्स ओन साइज बट नॉट द इकोनॉमिक कैरेक्टर गोटे पर्टिकुलर किसी गोटे इकोनॉमिक कैरेक्टर से ना जे जमी विलेज रे लोक मैंने समस्ते कृषि करती सेमती आम जब टाउन को जीवा माने सिटीज को जीवा से देखा जे प्रत्येक लोक से गोटे काम करेनि से भेराइटीज ऑफ वर्क अच्छी कौ मैंने चाष माने सर्विस कर तो अन्य कौ मैंने इंडस्ट्री काम कर कौ मैंने ट्रेड एंड कॉमर्स कर बिजनेस कर तेणु भेराइटीज ऑफ वर्क से रही भेराइटीज टाइप एमेनिटीज रही लोकंर भेराइटीज टाइप रही वांट्स रही एवं से वांट को फुलफिल करने से विभिन्न कार्य कर तेणु आम जब सिटी को डिफाइन करवा सिटी अर्थ हूँ टाउन अर्थ हूँ एनी एरिया और सेटलमेंट एज अर्बन which remains in administrative control. It has its own setup and size. So many cities are now becomes overgrown villages. आम जो विलेज गुड़ा देखले से विलेज गुड़ा कन्वर्ट हो जाइए बर्तमान टाउन को एवं से टाउन गुड़ा जो आम डेजिनेट बर्तमान करुचे से टाउन गुड़ा हूँ ओवरग्रोन विलेजेस जो विलेजटा ओवरग्रो कर जाए लोक मानकर पॉपुलेशन माइग्रेशन द्वारा बढ़ी जाए एवं लोक माने शहरी सभ्यता को आपड़ी नियंती सेतबेले सी गोटे ओवरग्रोन विलेज रे परिणत हुए तेणु ओवरग्रोन विलेजटा जो टाउन रे परिणत हुए कि गोटे सिटीज को धीरे धीरे टाउन गुड़ाक सिटीज को कन्वर्ट हुए से आम तार किसी गोटे स्वतंत्र कैरेक्टर रही चरित्र रही कौन से ना इट मस्ट हैव ए म्युनिसिपल एरिया
प्रत्येक टाउन रो गोटे कौन थाए तार गोटे साइज थाए गोटे सेटअप थाए से सेटअप टा को कह जाए म्युनिसिपल एरिया प्रत्येक टाउन रो गोटे म्युनिसिपालिटी थाए एवं तार गोटे स्वतंत्र बाउंड्री थाए एवं से बाउंड्रीटा इट इज डेजिनेटेड माने से बाउंड्री को लेकिन से एरियाटा को डेजिनेट करा जाए एवं प्रत्येक टाउन रो मिनिमम लोक संख्या 5000 हवा दरकार एवं से 5000 लोकों भितर 75% लोकंकर एक्टिविटीज एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं तेणु 75 लोक से नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करती आउ 25 लोक हुई तो से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जोटा कि आमर जो किचन गार्डन माने फल पनीपरिया चाष करवा फार्म हाउस तैयारी करवा ये जिन से इनवॉल्व होती another important character होची density not less than 400 persons per kilometer एटा मध्ये गोटे another characteristics of town or cities जोटी कि मिनिमम 400 लोक गोटे किलोमीटर भितर बसवास करुथिबे दैट इज another characteristic लोक मानकर बिजनेस सेंटर सब रहिथिबो एवं इंडस्ट्रियल सेंटर्स प्रत्येक शहर रे आमे निश्चय देखिबा कोठी ना कोठी बिजनेस सेंटर रही एवं लोक मैंने व्यवसाय वाणिज्य कर विभिन्न जिनस आनिक दबा लबा दौरान कि निजर घर को नौ some business centers are there are very big business centers also existing in towns next है इंडस्ट्रियल सेंटर्स एवं प्रत्येक विलेज रे मध्य छोट छोट इंडस्ट्री अच्छी बड़ इंडस्ट्री अच्छी जो लोक मैंने माने काम करुँच विभिन्न जिनस प्रोडक्शन होची सी सहर रे रहिबा सहित अन्य सहर को जाऊँगी तेणु लोक मानकर काम करवा टेक्निकल लोक माने लेबर लोक ठू आरंभ कर सब श्रेणी लोक से सहर मानक देखा जा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होची द प्लान्स विथ 1 लाख पॉपुलेशन ट्रीटेड एज टाउन सिटीज एक लक्ष लोकों ठारू जदि अधिका लोक गोटे एरिया रे बास कले से धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाए सिटीज को ताठू अधिका एवं से छोटे छोटे टाउन रू बड़ बड़ टाउन को एवं सिटीज को से कन्वर्ट हुए तेणु अर्बन पॉपुलेशन राइजेस इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आम देखुचे कि यही अर्बन सेंटर्स गुड़ा डेभलप करने फल जो ब्रिटिशर्स माने अर्बन सेंटर डेभलप कले द्वारा अनेक गुड़े छोट छोट अर्बन सेंटर गुड़ाक बिगर अर्बन सेंटर में परिणत है जमी दिल्ली कलकाता बेंगलोर मुंबई चेन्नई ये जो बड़े बड़ टाउन्स गुड़ाक सिटीज गुड़ाक परिणत होगा एवं यार एक्जिस्टेंस केतबेले आरंभ होला ना जेतबेले हमर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड रे एगुड़ाक बहुत परिमाण रे उन्नति करने को आरंभ करथिला यह व्यतीत आहरी केते गुड़े फैक्टर रही जो फैक्टर मध्य सिटी लाइफ आउ टाउन लाइफ को प्रेरित करुच्ची से गुड़ा कला जे लोक संख्या बढ़िबा फल अनेक जगह बर्तमान देखा ओभर अर्बानाइजेशन होची आम जो गोटे गोटे एरिया रे बहुत ओभर अर्बानाइजेशन होची आ गोटे एरिया रे बहुत कम लोक अच्छा तेणु यही ओभर अर्बानाइजेशन हबार मेन कारण होची एमिनिटीज को लेकिन जॉब प्रोस्पेक्ट्स को लेकिन एवं अन्य फैसिलिटीज को लेकिन जदि कौन सी एरिया रे जदि अधिक फैसिलिटीज मिलला लोक मैंने आसवाक चेष्टा करेंगे बसवास करने चेष्टा करेंगे जो भेराइटीज ऑफ ऑक्युपेशन मिलला काम कर सुजोग मिलला सेठी माइग्रेशन रेटा बढ़ लोक मानकर बस फ्लोटा आसो बेसी तेणु बहुत गुटे एरिया अच्छी जोटि कि आम देखुचे ओभर अर्बानाइजेशन आ गोटे गोटे एरिया अच्छी जो खूब कम लोक से बसवास कर एमिनिटीज कम अच्छी तेणु ये भाव में विभिन्न प्रकार टाउन आम देखीचे गोटे गोटे बहुत पॉपुलेटेड टाउन है बेले आ गोटे गोटे बहुत कम पॉपुलेशन भितर टाउन एक्जिस्ट कर अनदर माने फैक्टर जो फैक्टर टाउन को टाउन सहित रिलेटेड अच्छी आउ गोटे फैक्टर कहूँ आम सब अर्बानाइजेशन हूँ गोटे पर्टिकुलर अर्बन सेंटर पाखे आउ छोटिया छोटिया सब अर्बन कम्युनिटी डेभलप करुच्ची आम हूँ तो परवर्ती समय माने छोट छोट स्लम रु सब अर्बन सेंटर सब डेभलप कला फल
सेमानक भितरे गोटे दुई प्रकार कैरेक्टरिस्टिक रही गोटे किछिटा विलेज कैरेक्टरिस्टिक रही गोटे किछि अर्बन कैरेक्टरिस्टिक रही लोक माने मैक्सिमम सिटी माइग्रेटेड पॉपुलेशन देखा जाती एवं सेमाने मैक्सिमम लेबर कैटेगोरी लोक सिटी थांती एवं सेमाने छोट छोट व्यवसाय वाणिज्य करती तांकर कौन सी बड़ व्यवसाय वाणिज्य न थाए छोट छोट व्यवसाय वाणिज्य करती मनकर गोटे पाखे गोटे गाँ अच्छी ता पाखे गोटे सहर अच्छी से गाँ रु सेमाने चाषबास कर जिनिस ताको धरिकी आसती बिकती एवं पुणी से बिकी सारा पुणी से गाँव को फेरी जाती तेणु ये छोटिया छोटिया सेंटर सबू बड़ बड़ टाउन पेरीफेरी रे सृष्टि हुए तेणु साधारणतः ये अर्बन सेंटर गुड़ाक एक्जिस्टेंस बेसी आसबार मेन कारण हूँ बिकज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट साधारण विलेज रे अनएम्प्लॉयमेंट रेटा जो पॉपुलेशन बढ़ी जाए कौन विलेज गुड़ाक लोक मानकर अनएम्प्लॉयमेंट प्रोब्लेम स्टार्ट हुए एवं समस्त जो कृषि कार्य उपर जीविका धारण जीवन धारण करेंगे यार भी किसी माने न था तेणु बाध्य ही बहुत परिवार से पिला माने अर्बन सेंटर को पलि आसती सिटी किसी कार्य कर जीविका निर्वाह करता तेणु अनएम्प्लॉयड प्रोब्लेम बहुत परिमाण में माइग्रेशन सृष्टि करे अनदर फैक्टर है जे अनसर्टेनिटी एंड डिग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी आमर एग्रीकल्चर बर्तमान बहुत परिमाण में अनसर्टेन नहीं जाइए लोक मैंने आउ मन बड़ू ना कृषि कार्य करने जो मैंने पाठ साठ पढ़ले भल ये टेक्निकल नॉलेज आसला से मैंने कृषि कार्य न करके बर सहर को आसिक विभिन्न इंडस्ट्री बिजनेस सेक्टर में काम करने को आरंभ कले जहाँफल कि एग्रेरियन इकोनॉमी धीरे धीरे गाँव मानक दुर्बल हो जाऊँ कृषि कार्य लोक मैंने धीरे धीरे कमी जाऊँ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स से बहुत परिमाण रेस्पॉन्सिबल कहना लोक मैंने जो धीरे धीरे पिला माने माइग्रेट कर तेणु गाँव मानक गोटे वर्किंग फोर्स जो वर्किंग फोर्स यंग वर्किंग फोर्स अभाव देखा गाँव में मैक्सिमम बुढ़ा बुढ़ी लोक एमानकर एक्जिस्टेंस सेठी रही जो प्राय काम कर जिल ना से धीरे धीरे वीक हो गले तेणु से विलेज मान रहा फल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज धीरे धीरे वीक हो जाऊँ तेणु देयर आर सो मेनी सोशियो कल्चरल फैक्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड माइग्रेशन टू अर्बन सेंटर्स एवं से सोशियो कल्चरल फैक्टर भितर गोटे रही एजुकेशन ऑक्युपेशनल अपॉर्चुनिटीज अर्बन फैसिलिटीज एगुड़ाक साधारणतः यंगर जेनेरेशन को बहुत परिमाण में अट्रैक्ट कर भल एजुकेशन पाइबापी गाँ गलू बहुत लोग यंग पिला मैंने सहर को पलि आसुँच ऑक्युपेशनल अपॉर्चुनिटी जेहेतु सहर मानक बहुत अधिक अच्छी से आसबार कारण गोटे हो पारे एवं अर्बन फैसिलिटीज जोटा कि विलेज रे मिलेनी से प्रकार फैसिलिटीज अर्बन सेंटर मानक थी जो यंग जेनेरेशन से बहुत से अट्रैक्ट होती कि आमर सहर मानक पॉपुलेशन स्ट्रक्चर अधिका माने बढ़िया को आरंभ कर आम ये जो चैप्टर रे साधारणतः तीन जिनस को आम ये एनालिसिस कले गोटे हूँ विलेज लाइफ टाउन लाइफ एवं सिटी लाइफ प्रत्येक स्ट्रक्चरालाइजेशन विषय एनालिसिस कले केमी से स्ट्रक्चरली माने परस्पर ठार भिन्न परस्पर आउ गोटे जिन आम देखिले समस्त डिपेंडेबिलिटी विलेज टाउन उपरे टाउन विलेज टाउन आउ सिटी उपरे परस्पर भितर डिपेंडेबिलिटी केमती रही कौन कौन फैक्टर रही जो फैक्टर से माने परस्पर भिन्न ताकू आम एनालिसिस कले एवं सर्वशेष देखिले जे यही जो विलेज स्ट्रक्चर कहीं धीरे धीरे वीक हो जाऊँगी आउ टाउन सिटी रे ओवर पॉपुलेशन देखा दूची ताकू आम एनालिसिस कले तेणु यहाँ हूँ यूनिट 7 दिस इज द कंक्लूडिंग स्टेज नेक्स्ट विल गो टू यूनिट 8
What is that unit 8? Unit 8 deals with the agrarian class. Agrarian class means कृषि भित्तिक श्रेणी विभाग. आम देखुचे विलेज गुड़ाकर आम जो विलेज स्टडी कले से विलेज गुड़ाक हूँ तार स्ट्रक्चराइजेशन आम स्टडी कले कौ मैंने रहती कौन तर एक्टिविटीज हुए कौन कौ टाइप इकोनॉमिक एक्टिविटीज द्वारा से प्रभावित ये जिन गुड़ाक आम से स्टडी कले. बर्तमान आम आसवा जे एग्रेरियन क्लासटा कौन जो विलेज को स्टडी कले विलेज मूलपिंड ना हूँ एग्रीकल्चर खाद्य बासगृह एवं खाद्य और बासगृह हूँ सब मनुष्यर सबुठ इम्पोर्टाट जिनस से कौटी बसवास कर कौन खाइब खाइबा भितर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हूँ सबुठ इम्पोर्टाट कैरेक्टरिस्टिक्स. विलेज गुड़ाक जो रही से माने कृषि कार्य बसवास करते जीविका निर्वाह करते जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हुए से गुड़ाक साधारणतः से विभिन्न सहर में दबा फल गुजराण मेटे सहर लोक मैंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पाती कहीं जेहेतु से कृषि करती ना अन्य ऑक्युपेशनल एक्टिविटी सहित जड़ित था तेणु खाद्यपाई से मैंने विलेजर्स मान निर्भर करती. आम जो विलेज सब देखुचे से विलेज रे गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर हूँ कृषि कार्य को लेकर विभिन्न क्लास स्ट्रक्चर तैयारी माने धनिक श्रेणीर एग्रीकल्चरिस्ट जो को आम जमीदार बोली कहे से पाखे अधिक जमी थाए से जमी को से बंधक देकर कृषि कार्य करते अन्य जो लोक मान गरीब श्रेणी लोक से जमी चाष करती चाषबास करती भितर दबा नवा सिस्टमटा डेभलप करे. साधारणतः कौन हुए ना आम विलेज रे देखू केवल विलेज रे लोक मैंने कृषि कार्य सहित से जड़ित का नुहति अनेक सहर लोक मैंने विलेजर्स मान जमी सब क्रय कर नियोजित कर. तेणु आम देखू अनेक गुड़े एग्रेरियन और कैपिटलिस्ट एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर भारत में देखा जाए एवं से कैपिटलिस्ट एग्रेरियन क्लास हूँ गोटे ग्रुप जो ग्रुपटा को आम कहे धनिक श्रेणी माने एग्रेरियन क्लास एवं यही दुईटा जिनस आम बर्तमान आम एम्फासिस दबा गोटे हूँ कैपिटलिस्ट एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर अनदर इज नॉन कैपिटलिस्ट एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर. दुईटा कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर आम एनालिसिस करवा ये चैप्टर आर मेन ऑब्जेक्टिव हूँ आम जो चैप्टर को एनालिसिस करवा द्वारा जो गोटे ऑब्जेक्टिव हूँ डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एग्रेरियन क्लास इन इंडिया. आम एग्रेरियन क्लास कहले कृषि भित्तिक जाति बोली आम जहाँ को कहे तार नेचर कौन और स्ट्रक्चर कौन. नेक्स्ट है से विभिन्न क्षेत्र में कैरेक्टर माने एक्टिविटीज कौन तांकर कैरेक्टर तांकर एक्टिविटीज एवं से को लेकिन जो प्रोडक्शन मैंने करुँच ता सहित तांकर रिलेशन कौन रही. गोटे है कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर से एक्टिविटीज को लेकर प्रोडक्शन. तेणु ये जो तीन टा स्टेज रे एग्रेरियन कल्चर और एग्रेरियन क्लास एक्जिस्ट करुँची ताको आम एनालिसिस करवा. साधारणतः कौन हुए ने आम जो एग्रेरियन विलेज देखू अतीत जो वेदिक एज ठू आरंभ करके इंडस वैली सिविलाइजेशन हो कि आहरी एडवांस स्टेज को हो से समय जो विलेज गुड़ाक एक्जिस्ट करता से विलेज रे तीन टा कैरेक्टरिस्टिक्स सब देखा जाए. गोटे हूँ प्रोडक्टिव इकोनॉमी आउटे हूँ कंजप्टिव इकोनॉमी जोटा कि से कंजप्शन करती जहाँ प्रोडक्शन करती कंजप्शन करती आउटे हूँ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तेणु से प्रोडक्शन कले प्रोडक्शन कौन पे करती ना निजे खाई बचापी किंतु सब बेले तो जी से प्रोडक्शन हुए से गुजराण मेटापी गोटे वर्ष चलने अधिक से प्रोडक्शन करते से प्रोडक्शन टाक रखिए कौन कौन करेंगे कौन करती ना से
डिस्ट्रीब्यूशन करती डिस्ट्रीब्यूशन माने सेल करती बिकती तेणु से मनकर जड़े कृषि खाली धान कला धान को से निज वर्ष निज खाद्य रखिला बाकी तक सब कौन कला ना से डिस्ट्रीब्यूट कला एवं डिस्ट्रीब्यूट करने फल सी ता बदल में अन्य तार जो जिन दरकार माने पोशाक दरकार पिला पाठ पढ़ाई दरकार हेल्थ दरकार तेणु से गुड़ाक सब पैसा से रोजगार करने फल से धान बिकिकी डिस्ट्रीब्यूट कर अन्य लोक बिकिकी ग्रहण कले किंतु ये जो दबा नवा और बिकवा ये भितर से जो गोटे पर्टिकुलर सिस्टम से प्रिवेल करे कला से सिस्टम कौन ना ये विलेज जो लोक मैंने सब थे मैक्सीम से अशिक्षित केवल से जानते चाषबास करवा चाष जो पदार्थ उत्पादन करेंगे निजे खाइबे बाकी बड़का जिनस को से बिकिबे किंतु क्या बिकिबे से निजे नहीं जापरेनि सहर को मंडी को लेकिन जापरेनि तेणु सहर सब बिजनेसमैन माने मिडिल मैन माने से गाँव को आसिक ने तेणु एमाने प्रोडक्टिव प्रोडक्शन रहिले प्रोडक्शन कले जिनस को आउ गोटे दल रही से प्रोडक्शन कले किंतु जिनिस नहीं से जो होलसेलर पाखे देले तेणु ये जो मिडिल मैन सी भितर गोटे रिलेशनशिप एस्टाब्लिश कला प्रोडक्शन टू माने डिस्ट्रीब्यूशन पर्यंत एवं से डिस्ट्रीब्यूशन जोटा हम से माने सहर मानक बड़ बड़ मंडी मानक हाट बजार मानक साधारणतः से प्रोडक्टिव मटेरियल को से सेल कले एवं सेल करने फल गोटे जगार जो प्रोडक्शन जो होती तार वैल्यू जी रही जिते सी एक्सचेंज होती अन्य गोटे एरिया को जाऊँगी अन्य गोटे बड़ ऑर्गेनाइजेशन को जाऊँगी कि हाट को जाऊँगी तार प्राइस बदली जाऊँगी तेणु ये जो विलेजर्स मैंने जो मैंने प्रोड्यूस कर गरीब रोचंती किंतु तार बेनिफिट नौ मिडिल मैन जो सहर में कौन धनिक श्रेणीर लोक पाखे दौची से बिकिकी अधिक मुनाफा से कमाऊँ जहाँफल कि गोटे क्लास स्ट्रक्चर सृष्टि हो जो डिफरेंशियल स्ट्रक्चर जो सृष्टि होची से डिफरेंशियल स्ट्रक्चर को आम मार्केट इकोनॉमी बोली कहूँ तेणु मार्केट इकोनॉमी रे साधारणतः यही प्रकार जो स्ट्रक्चरालाइजेशन आपको बहुत परिमाण में प्रिवेल करता है तेणु एग्रीरियन स्ट्रक्चर को आम केतोटे भाग में विभक्त करवा दैट इज वन इज कैपिटलिस्ट एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर जोटा कि भारत में बहुत परिमाण देखा जाए से भितर रही था बिग लैंडलॉर्ड्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स बहुत बड़ बड़ लैंडलॉर्ड्स था लैंडलॉर्ड्स माने कौन जहाँ पाखे अनेक जमी थाए बहुत बहुत जमी थाए एकर एकर जमी थाए एवं से जमी को से एक्वायर करते विभिन्न लोकों ठारू पैसा दे एक्वायर करनी जेहेतु पाखे पैसा अच्छी से पैसा को देखिए एक्वायर करते एवं जो लोक मान पाखर नियंती से पुणी से जमी खटाती एवं से कह जाए बॉन्डेड लेबर और एग्रीकल्चर लेबरर्स तेणु ये कैपिटलिस्ट जो मैंने रहती जो मैंने लैंडलॉर्ड रहती से एग्रीकल्चरल लेबरर मानकर सब भल मंद बुझंती बुझार मेन कारण हूँ जे से सब पाखे ही रे चाष जमी को चाष करेंगे एवं से जो उत्पादन हम तार मेजर शेयर से ने अल्प शेयर देवे तेणु एटी से निजर लाभपाई निजर उन्नति से यही प्रकार गोटे सिस्टम एस्टाब्लिश करती कैपिटलिस्ट ग्रुप रो जो कैरेक्टरिस्टिक्स को आम दी भाग में व्यक्त करिया गोटे होची कैपिटलिस्ट क्लास रिलेशन अनदर होची प्री कैपिटलिस्ट क्लास रिलेशन से कैपिटलिस्ट क्लास रिलेशन कौन सरप्लस
extracted from the labor freely sold in the market, the labor is considered commodity in the production process. Next point is surplus realized through the exchange in a commodity exchange purposes. So surplus reinvested, giving rise to a continued process of accumulation of capital and ever expanding production. Fourth one is pursuit of profit leads to changes in the organic composition of capital and a continuous process of technological advancement. कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रही इंडिया रे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को लेकर से तार मेन प्रथम पॉइंट है जे आमे जो प्रोडक्शन कले प्रोडक्शन जो सरप्लस अमाउंट बाहरला ताठू जो अधिका प्रोडक्शन है ताकू से माने कौन कहते ना फ्रॉम द लेबर फ्रीली सोल्ड इन द मार्केट द लेबर इज कंसीडर्ड कमोडिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस तेणु से जो लोक जी कम करा गोटे से कम से मजूरी पाइला से कम से जी तार पाइबा कथा मनकर धान आकार में तुमको 50 बस्ता से धान पाइब से 50 बैग से पाइब कि बाकी रेस्ट चलीज तार लैंडलॉर्ड पाक आउ से सरप्लस रियलाइज्ड थ्रू दी एक्सचेंज इन ए कमोडिटी एक्सचेंज प्रोसेस जो सरप्लस अमाउंट तार मिलला से सरप्लस अमाउंट को से अन्य कमोडिटी किनिया एक्सचेंज कला थर्ड सरप्लस अमाउंट इज रीइनवेस्टेड मनकर तार अधिका किसी सरप्लस धान है से धान को से लेकिन रीइनवेस्ट कला माने से जदि 10 बस्ता धान से पाइला 10 बस्ता धान को लेकिन मैंने से देला कौन सी मंडी रे एवं से मंडी रे रखिकी किसी पैसा आनला अन्य जिनस किणवे कि अन्य कम लगेला तेणु कैपिटलिस्ट क्लास रे माने वर्कर आउ लेबरर आउ लैंडलॉर्ड भितर ये संपर्क माने थाए प्री कैपिटलिस्ट क्लास रिलेशन होची सरप्लस एक्सट्रैक्टेड थ्रू एक्स्ट्रा करेक्शन लेबर इज नॉट फ्रीली अवेलेबल it is unfree and it is not a commodity to be sold for money. Surplus appropriated directly without intervention of any market. Surplus goes into the luxury consumption and in different unproductive investment, leaving no or little stock of productive capital to be used for the expansion of production. Use of technology remains limited in production. तेणु प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रे आम जोटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखले जोठी लैंडलॉर्ड अच्छी वर्कर अच्छा लेबरर्स अच्छा माने कृषि जातीय लेबरर सेठी गोटे प्रकार सिस्टम प्रिवेल करे जोठी की एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस टाको लैंडलॉर्ड माने मैनेज करती किंतु प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रे साधारणतः से लेबरर माने जो माने कृषि करि थांती से माने एंकर एंटायर प्रोसेस टाको मैनेज करती आमे भारत रे एई दुई प्रकार सिस्टम आमे देखू साधारणतः कौन हुए ना जिते आमर सोशियोलॉजिस्ट माने इकोनॉमिस्ट माने भारत इंडिया रो विलेज कम्युनिटी स्टडी करती से देखते जे यही जो लैंडलॉर्ड लेबरर एग्रीकल्चरल लेबरर मार्जिनल फार्मर आउ रिच आउटसाइडर्स माने मिडिल मैन एमान भितर जो रिलेशनशिप को से एस्टाब्लिश करती रिलेशनशिप रे से देखते मैक्सिमम साधारणतः लेबरर्स माने एग्रीकल्चरल लेबरर्स माने से माने एक्सप्लॉइटेड होती से जी पाइबा कथा चाष जमी परिश्रम कर जी पाइबा कथा एक्चुअली से पाती बहुत कम पाती कि वर्ष तमाम खाद्य से ग्रहण संग्रह करफल कि सब डिपेंड होती हायर कास्ट ग्रुप्स उपरे से अभाव असुविधा साहाय्य करती बदल में अधिक लेबर से आशा करते तेणु एक्सप्लॉइटेशन
is a factor in the in this class system, agricultural class system. ଆମେ ଏବେ लैंडलॉर्ड जो मैंने सब हायर ग्रुप रे रही था जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रे लैंडलॉर्ड काहा को आमे कहूचे एठी तार एक्सप्लेनेशन और अछि तुम बही रे देखो इन द केस ऑफ बिग लैंडलॉर्ड्स whether feudal or capitalist family members do not perform manual labor in major farm operations supervision or operating machinery is not considered manual labor ଏଠି ଏଗୁଡାକ ମାନୁଆଲ ଲେବର ବୋଲି ତାକୁ କନସିଡର କରାଯାଏନି ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ରିଚ୍ ପିଜନ୍ସ who are the rich peasants they do participate in manual work however their resources position is such that appropriation of others labor is at least is important as use of family labor. The middle peasantry is primarily self-employed since no since on the average the resources per capita just suffice to employ adequately the supply of family labor and they provide a living at a community subsistence level. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରିଚ୍ ପିଜାଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ଲେବର କ୍ଲାସ another ହେଲା rich peasants and third one is landlord ତେଣୁ poor peasant ମାନେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ହିଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଏଇ ରିଚ୍ ପିଜାଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗେଇଥାନ୍ତି ମନେକର କାହାର ସାର ଦରକାର ହେଲା କାହାର ଭଲ ବିହନ ଦରକାର ହେଲା କାହାର ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଦରକାର ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ଯୋଗାନ୍ତି ଆଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡେନି ଏମାନେ କେବଳ ଲେବର ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସର जो रिच पिजेंट्स माने रहिले ସେମାନେ ହେଲେ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ ସେମାନେ ଆଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା ତାକୁ ନେଇକରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ପାଖରୁ ସେମାନେ ଆଣିକି ସହରରେ ମଣ୍ଡିରେ ଦବା ଏବଂ ବିକିବା ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସେମାନଙ୍କର କାମ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଚାଷ କରନ୍ତି ନିଜେ ଜମି ଆକ୍ୱାର କରିକି ସେମାନେ ଚାଷ କରିକି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୁନାଫା ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ତିନିଟା କାଟେଗୋରୀର ଲୋକ ଯୋଉ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି poor peasants or poor agriculturist some people are full time laborer ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ସେମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ କାମ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଇଏ ଜମିରେ ମାନେ କିଚେନ ଗାର୍ଡେନରେ କାମ କରନ୍ତି ପନିପରିବା ସେମାନେ ଅମଳ କରନ୍ତି ଧାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଅମଳ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଲ ଟାଇମ ଲେବରର ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ପୋର ପିଜେଣ୍ଟ ସେମାନେ ମଲ୍ଟିଫେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ସବୁ କରନ୍ତି ଆଉ ରିଚ୍ ପିଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଚାଷବାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ତିନିଟା କାଟେଗୋରୀର ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ଏଗ୍ରେରିଆନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ସେମାନଙ୍କର ଡୋମିନେଣ୍ଟ ରୋଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ हेलो
ମୁଁ କିଛିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଯାହା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ତାକୁ ସମରାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି। ଆମେ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଲେ, କୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯାହା ଯୋଉଟା ଆମେ ଭାରତରେ ଦେଖୁଛେ, ତାର ନେଚର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି। କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଏଇ କାଟେଗୋରୀ ଭିତରେ ଜାଣିଛେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ କାଟେଗୋରୀ ଭିତରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେମି ଫ୍ୟୁଡାଲିଜିମ୍ କାଟେଗୋରୀ ଉପରେ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଆମେ କରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍, ଯୋଉଟାକି ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ୟାଟ୍ରୋନେଜ୍ ଦ୍ୱାରା, ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ୟାଟ୍ରୋନେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ତାକୁ କହନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। ଆଉ ସେମି ଫ୍ୟୁଡାଲିଜିମ୍ ମିନ୍ସ ଯୋଉଟାକି ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜା ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜମି ରହିଲା, ଏବଂ ସେଇ ଜମିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଅମଳ କଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଏବଂ ରାଜା ତା ବଦଳରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ସେମାନେ ଯୋଗାଇଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେମି ଫ୍ୟୁଡାଲିଜିମ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଆମେ ଏଗ୍ରେରିଆନ୍ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲାବେଳେ ଏଇ ଦୁଇଟା ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ଦେଖୁଛେ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ vividly analysis କଲେ। Another thing is that এই ଯୋଉ agrarian class structure ରହିଛି, ମାନେ ଧନିକ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଗରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ agrarian structureରେ ଏଇଭଳି ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ସ, ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, ରିଲେସନ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ vividly discussion କରିଛେ। नेक्स्ट है दी जो सेमी फ्यूडल क्लास जो कथा आम डिस्कसन कले, से इट एक्सप्लेन्स अबाउट दी दैट इज वेयर आल्सो एक्सप्लेन टू यू थ्रू द कंट्रीब्यूशन of research in different regions of India by eminent scholars like Ashok Rudra, Uttara Patnaik, Amit Bhandari, and others. You know, these are the Indian sociologists who studied about Indian rural people and the agrarian culture, system of economy. You have been introduced to the proponent of both the positions and how they continue various categories of agrarian classes and the parameters that they use to define their respective positions. आमे जे केवल तांका भितर इंटरेक्शन प्रोसेस को आमे देखिले ता नुहे, सेमानक भितर थिबा एक्टिविटीज एवं तांकर हायरार्किकल ऑर्डर ताको मध्य आमे इके एनालिसिस कले। हेलो, यस, तेणु आमे ए जो दुटा जिनिस को आमे एम्फासिस देले जो एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर रे हमरो एटार मेन एम है टू अंडरस्टैंड दी एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर। आम आ पूर्व जो पढ़ले से एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, किंतु एग्रीकल्चर को लेकिन केमती विलेज मानक गोटे एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर डेभलप करी सेमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डेभलप करी तार ये बर्तमान एनालिसिस कराई। तेणु आम केवल जे विलेज स्ट्रक्चर को कि विलेज टाउन स्ट्रक्चर को कि सिटी स्ट्रक्चर को खाली स्ट्रक्चरालाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखिले ता हेनी, आम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एनालिसिस करिया पड़िबो। एवं से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एनालिसिस कले आम देखिबा जे या भितरे अनेक गुडे मेकानिज्म काम करुछि, एवं व्हाट इज दैट मेकानिज्म? सेही मेकानिज्म होछि गोटे क्लास स्ट्रक्चर रही जो माने एंटायर जिनस को कंट्रोल करछंती, आ गोटे ग्रुप लोक अछंती जो माने सेही प्रोडक्शन को से माने ताको बिजनेस करिकरी सेथरु मल्टीफेसेटेड आइटम्स ताको बाहर करछंती एवं ताको सेल करिकरी से माने परस्पर भितर संपर्क एस्टाब्लिश करछंती। एवं आ गोटे श्रेणी आम देखिले जे अनेक गुडे लोक एक्सप्लॉइटेड होउछंती आ द्वारा, से माने प्रॉपर वे रे जहाँ न्याय पाइबा कथा से पाऊना। तेणु
सब बड़े गोटे कनफ्लिक्ट स्टेट ये प्रिभेल करुच्ची लोक मैंने चाषबास छाड़ी से माने माइग्रेट कर सहर मान को तेणु आ द्वारा कौन हो माने बंडेज लेबर कनसेप्ट सृष्टि होची लोक माने जीवन सारा तांका भितरे माने स्यूडो रिलेशन एस्टाब्लिश हवा फल माने धनिक श्रेणी लोक और गरीब श्रेणी लोक सेमती विलेज मानक एक्जिस्ट करने फल गोटे स्वतंत्र डिफरेंट स्ट्रक्चर विलेज रे देखा दूची तेणु कैपिटलिस्टिक एग्रेरियन इकोनॉमी एबे मध्य भारत रे प्रिभेल करे एवं भारतीय लोक मान भितर ये जो प्रकार संपर्क केतक क्षेत्र में भल संपर्क एस्टाब्लिश कर केतबे ये संपर्कटा माने इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को वीक कर जहाँफल कि बहुत बड़े माइग्रेशन विलेज आउ अर्बन माइग्रेशन गुड़ाक आम देखा पाऊँ तो with this we may conclude. Please tell if you have any doubt, we'll have a discussion. Sir? Yes. Sir, semi-feudal sir, one second sir discuss. Semi-feudal टा discussion करिबा. Yeah. Feudal माने होची हमरो राजा राजुरन का शासन. Semi-feudal माने जो माने आमे देखिते माने मु अतीत रे कहली जे फ्यूडल कम्युनिटी जेतले राजा थिले राजा रहिले एको अंडर रे अनेक गुडे चाष जमी रहिला एवं से चाष जमी गुडा को जते माने गोटे विलेज रहिछि 5-10टा विलेज रो से तांको अंडर रहिला से विलेज रे जते थिबो चाष जमी किमा जमी थिबो से होसन सब राजांकर एवं सेही राजांकर जमी रे एमाने चाषबास करिवे तांकर खाद्य निजे करेंगे जहाँ बड़का रही से राजा को देव राजा कौन करेंगे से जो बड़का जिनस मिलिटारी लोक पोषे गाँ मानक जो रास्ता घाट हम पोखरी हम कि देवालय हम ताकू तैयारी करेंगे तेणु लोक मान सुविधा भल मंद से सब राजा बुझे तेणु ये गोटे सिस्टम जो प्रिभेल करता आम कहे फ्यूडल सिस्टम किंतु फ्यूडल सिस्टम रे जने राजा रहिले से राजा होचन सबुठारु रिच से होले लैंडलॉर्ड तेणु यही प्रकार जो सिस्टम था फ्यूडल सिस्टम किंतु परवर्ती समय से जो फ्यूडल सिस्टम आउ तो राजा नांती किंतु राजा नथिबा परे आउ जो गोटे स्यूडो किंग सिस्टम प्रिवेल कला ताको कहती सेमी फ्यूडल सिस्टम रे आसिले लैंडलॉर्ड सी आ राजा बोले डेजिग्नेटेड हेलेनी से लैंडलॉर्ड हो गले तो रिच बिजनेसमैन से माने हेले एवं से माने कौन कले ना बहुत गोटे जगह सब किनिक्री अख्तियार को आनिले एवं जहाँफल कि बहुत गुड़े जमी साधारणतः से लेबरर्स मान को एग्रीकल्चरल लेबरर्स मान को खटेले एवं से जहाँ से माने पाइले जो अमल है से अमलर मैक्सिमम भागीदारी रहा माने ये जो लैंडलॉर्ड मानकर आ खूब कम भागीदारी रहा जो मैंने कम कले चाष जमी कहीं जमीटा रहा एवं से जमी से वर्ष तमाम कम कले तेणु लैंडलॉर्ड जहाँ चाहिए से माने पाइबे मैक्सिमम शेयर से माने नहीं गले तेणु जहाँफल कि एमाने वर्ष तमाम परिश्रम करके न्याय अधिकार पाइले एंड दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय दिस लैंडलॉर्ड्स तेणु ये जो प्रकार जो सिस्टम रहा आम कहे सेमी फ्यूडल सिस्टम. Thank you, sir. Thank you, sir. Anything? I mean, No, sir. city town रो किसी problem अछि कि? City, sir. No, sir. ना अच्छा, okay. Thank you, sir. एक्चुअली जो टाइप रो क्वेश्चन सब पड़िबो तमरो असाइनमेंट सब रहइबो किना क्वेश्चन पड़िबो से गुडा को माने शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन एम सब आसीबो तेणु मनकर एटी जो मनकर एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर गोटे क्वेश्चन आसीबो जे ए जो फ्यूडल सेमी फ्यूडल व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूडल लिजिम व्हाट इज द सेमी फ्यूडलिज्म मेक ए कंपैरिजन तेणु एठी जे कोन करियो ना तमे देखैबो दीटा फैक्टर देखे हां दीटा पार्ट करके ताको देखैबो ताको कंपेयर करिवो एथरे कोन थिला एथरे कोन थिला एथरे बेसी वेलफेयर मेजर्स थिला
ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟିଭ ମେଜର୍ସ ବେଶୀ ରହିଲା। ତେଣୁ ରାଜା ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଧିକା ସେମାନେ ଅମଳଟା ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ ୱେଲଫେୟାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଭିଲେଜର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିବ, ଲୋକମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ ହେବେ, ଏବଂ ଗାଁରେ ସବୁ ପୋଖରୀ ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କର ଏସେନ୍ସିଆଲ ଦରକାର, ମାଛ ଚାଷ ହବ, ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହବ, ଗଛ ଲଗା ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଟାଇମ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତେଣୁ ସେମି ଫ୍ୟୁଡାଲ ସମୟରେ ଏଇଟା ବଦଳିଗଲା। ତେଣୁ ରାଜା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜମିଦାର ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମିକୁ ଆକ୍ୱାର କରିନେଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଖଟେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳିଗଲାଣି। ଆଉ ସେଇ ଜମିଦାର ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେଥିରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗା ଦିଆ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତମର ଏଇ ଚାଷ ଜମି ତମର, ତମ ଉପରେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ତମେ ଯାହା ଅମଳ କରିବ ସେଇଟା ହଉଛି ତମର, ଏବଂ ତମେ ତାକୁ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିବ। ଯାହା ତମର ଖାଇଲ, ବାକି ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ ସେଲ କରିକି ତମର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଟ୍ରୋନେଜ ସିଷ୍ଟମରୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆସିଲା। Yes, sir. Okay, sir. Anybody, anything? Hello, sir. हाँ प्रियंका को। Hello. हाँ प्रियंका को। sir, actually city out town ମାନେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଲାଗୁଛି it is similar. Actually main difference, what is the main difference between city and town? ଟାଉନ ଗୁଡା କହୁଛି ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଗୋଟେ କହନ୍ତି, ତମେ କୋଉ ଏରିଆରେ ରହୁଛ, କୋଉଠି ରହୁଛ? ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର। ହ୍ୟାଲୋ, hello sir. ନା ତମେ କୋଉଠି ରହୁଛ, ଭିଲେଜରେ ରହୁଛ ନା Hello. ଟାଉନରେ ରହୁଛ ନା ସିଟିରେ ରହୁଛ? Sir, village. ଭିଲେଜରେ ରହୁଛ। ତମ ଭିଲେଜ ପାଖରେ କଣ ଟାଉନ ଅଛି? Yes. କଣ କଣ ଟାଉନ ଅଛି? ହଁ sir, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର। ହଁ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ହଉଛି ଗୋଟେ ହଁ ଟାଉନ। ମାନେ ସେ ଟାଉନ କାହିଁକି କୁହାଗଲା, ହଁ ନା ସେଠି ତମ ଭିଲେଜରେ ଥିବା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଠାରୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ଥିବା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ବିଜନେସ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ରହିଛି, ସେଠି ମାନେ ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାପରେ କି କଣ, ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲାଇଜେସନ ହଉଛି ଭିନ୍ନ। ସେଠି ଅନେକ କୋଠା ଘର ରହିଛି, ଯାନବାହନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଟାଇପର ରହିଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତମ ଭିଲେଜରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତମ ଭିଲେଜର ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ, ଭିଲେଜର ପେରିଫେରୀରେ ଯୋଉ ଅର୍ବାନ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡାକ ଡେଭଲପ କଲା, ସେଗୁଡାକ ହେଲା ଟାଉନ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅର୍ବାନ ସେଣ୍ଟର ହେଲା, ସେଟା ହେଲା ଟାଉନ। କିନ୍ତୁ ଟାଉନ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟାଉନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିଟି ଅଛି, ମନେକର ତମେ କହିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଟି। ଏଠି ସିଟି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାଉନ ସବୁ ରହିଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିଟି ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାଉନ ଅଛି, ଯୋଉ ଟାଉନ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗୋଟେ ଟାଉନ। ତେଣୁ ସେମିତିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାଉନ ସବୁ ରହିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିଟି ଭିତରେ, ଏବଂ ତାର ପପୁଲେସନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା, ତାର ମାନେ ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଟାକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଯେ କେତେ ଲୋକ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଟାଉନ ହବ, କେତେ ଲୋକ ରହିଲେ କେତେ ଗୋଟେ ସିଟି ହବ, ଏବଂ ତାର ଏରିଆଟା କେମିତି ରହିବା ଦରକାର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଟାଉନ କିମ୍ବା ସିଟି ହେଲା। Okay sir. Thank you sir. ଓକେ, ଏଇଠି ଆମେ କନକ୍ଲୁଡ କରିବା। Okay sir. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. अच्छा, Thank you, sir. ओके, थैंक यू, Good night, sir. गुड नाइट। Thank you sir. Good night. हाँ, गुड नाइट। Sir.
In the next class, we'll go to Unit 9, that is Industry and Labor, and it belongs to Block 3. ଆମେ ଏଟାକୁ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭିଲେଜ ଟାଉନ୍ ଆଉ ରାପିଡ୍ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ନେଇକରି କେମିତି ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ଟାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ଏବଂ ସେଇ ଅର୍ବାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ଟାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲେବର ଦୁଇଟାର କେମିତି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ତାର ଆନାଲିସିସ୍ଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା। Industry and labor is, I think it belongs to block 2. And this unit, the block 2 contains agrarian class, industry and labor. Another two is caste, tribe, village, town, city. So in this particular block 2, we have caste, tribe, village, town, city, agrarian classes, industry and labor. So we have unit 5, 6, 7, 8 and 9. Actually, industry and labor belongs to block 2. And block 3 contains unit 10, 11, 12, 13, 14. 10 is the family, marriage and kinship. Unit 11 is religion and society. Unit 12 is race and ethnicity. And unit 13 is polity and society. And 14 is the economy and society. Unit 2 केवल different concept ଉପରେ ପ୍ରତିବେଶିତ, that is caste, tribe, village, town, ଏଗୁଡ଼ା different concepts, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା agricultural classes, industry, labor, ଏଗୁଡ଼ାକର relation, existence and the dependability, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି block 2 ର essence। and block 3 ରେ ହେଉଛି there are some other factors, particularly what is family, marriage, kinship, then religion, society, race, ethnicity, polity, social, society, economy and sociology, economy and society, economy सहित society relation, politics सहित society relation, what is race, what is ethnicity. So these are the some very important factors relating to social studies or the social sociology of India. ଆମେ इंडिया को आज ए होल देखा कहले ये जो फैक्टर गुड़ाक रहा ए फैक्टर बहुत इंपोर्टेंस रही टू अंडरस्टैंड इंडिया आज ए होल। तेणु आम नेक्स्ट ब्लॉक रे विल स्टडी ऑल दिस एस्पेक्ट्स।